Good morning, students of class 3. Students, I am sure all of you are fit and fine. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 44 as I'll be continuing with Unit 11, Present Continuous Tense. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 44 as I'll be continuing with Unit 11, Present Continuous Tense. Students, in my last video, I was explaining exercise 1, circle the correct verb. And we had done the first 5 sentences of this exercise. Now today, before I move further, let's revise these 5 sentences of exercise 1 given on page number 44. Exercise 1, circle the correct verb. The first one, my mother is peeling the carrots. Students, please encircle is peeling. बेटा is peeling पे आप circle बनाइए. My mother is peeling the carrots. Second, I am grating the carrots. In this, please make a circle on am grating. बेटा इसमें am grating में हमको circle बनाना है. So a sentence will be I am grating the carrots. Third, today we are making carrot halwa. Make a circle on are making. इसमें बेटा हमको are making पे circle बनाना है. So today we are making carrot halwa. Fourth, they are parking their car. Make a circle on are parking. बेटा are parking में fourth वाले sentence में circle बनाना है. They are parking their car. Fifth, you are disturbing me. Make a circle on are disturbing. बेटा इसमें are disturbing में हमको circle बनाना है. Now the sixth one. I are filling am filling my water bottle. This is our sentence. I dash my water bottle. Now we need to choose between are filling and am filling. Now look at the subject. बेटा इसमें subject क्या है? I. As I had already explained, I के साथ बेटा present continuous tense में am plus जो भी verb का है वो ing form आएगा. वर्ब का जो ing form है वो किसके साथ आएगा? am के साथ. When the subject is I. अगर आपका बेटा subject I है तो आपको याद रखना है कि present continuous tense में I के साथ am और verb में जो ing लगेगा वो आएगा. This you need to remember. So I के साथ are filling तो हो नहीं सकता है. are कब होता? जब हमारा subject we होता, you होता, या कोई plural they होता, या कोई plural होता. So we will cross are filling and we will make a circle on am filling. So our sentence will be I am filling my water bottle. हमारा sentence क्या हो जाएगा बेटा? I am filling my water bottle. Remember, I के साथ present continuous tense में present continuous tense क्या बेटा? कोई एक्शन जो अभी हो रहा है और कंटिन्यू कर रहा है, चलता जा रहा है, खत्म नहीं हुआ. दैट इज कंटिन्यूस टेंस. कंटिन्यूस का मतलब जो चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है. एंड प्रेजेंट मीन्स अभी. सो आई के साथ हमेशा एम प्लस वर्ब में आईएनजी आता है. दिस यू नीड टू रिमेंबर. सो आवर सेंटेंस विल बी
I am filling my water bottle. Please write. The sixth one, make a circle on am filling. So our sentence will be, I am filling my water bottle. Now, I'm going to erase this. I hope everybody has done. Make a circle on am filling. Now the seventh one. He is cleaning oblique are cleaning his study room. Now, look at this sentence, students. In this sentence, subject क्या है? He. And we have to choose between is cleaning or are cleaning. Ab now, as said, beta, if your subject is he, she, इनके साथ हमेशा is plus verb का ing form. This you need to remember. Subject he या she हो, that means singular subject. और singular के साथ present continuous tense में is plus verb में ing form लगता है. This you need to keep in mind. So यहाँ पे subject ही है, तो he के साथ क्या होगा? Is cleaning. आर क्लीनिंग नहीं होगा. आर किस क्लीनिंग किसके साथ हो सकता है? वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, है ना? सो वी विल क्रॉस दिस आर क्लीनिंग. सो आवर सेंटेंस विल बी ही इज क्लीनिंग हिज स्टडी रूम. हमारा सेंटेंस बेटा क्या हो जाएगा? द सेवेंथ सेंटेंस, ही इज क्लीनिंग हिज स्टडी रूम. आई होप ऑल ऑफ यू हैव मेक अ सर्कल on is cleaning. बेटा सबने is cleaning पे सर्कल बना दिया. Remember, whenever the subject is he, है ना, सब्जेक्ट ही हो, she हो, कोई भी सिंगुलर नाउन हो, तो उसके साथ हमेशा हम is प्लस वर्ब का ing फॉर्म लेते हैं. So our sentence will be, he is cleaning his study room. Please make a circle on is cleaning and cross out are cleaning. और हम कब लेते? जब हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल प्रोनाउन या नाउन होता. फाइन. आई होप एवरीबडी हैज डन चिल्ड्रन. ओके. सो आवर सेंटेंसेस, 7 sentences. ही इज क्लीनिंग हिज स्टडी रूम. I'm sure all of you must have made a circle on his cleaning. Now I'm going to erase this and write the 8th one. This is the last sentence of this exercise. Children. Children is flying oblique are flying kites. This is the sentence. Now look at the subject. Subject क्या है? Children. Who are flying kites? Children. तो बेटा जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट होता है. तो इन दिस सेंटेंस चिल्ड्रन सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट चिल्ड्रन सिंगुलर है या प्लूरल है? चाइल्ड सिंगुलर होता है ना, बट ओवर हियर चिल्ड्रन है. दैट मीन्स हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, हमें हमेशा आर यूज करना है. हम कभी भी इज नहीं यूज करते. अगर यहाँ पे चिल्ड्रन की जगह द चाइल्ड होता तो हम इज फ्लाइंग करते, बट सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो हम किसको चूज करेंगे? आर फ्लाइंग. मेक अ सर्कल ऑन आर फ्लाइंग एंड पुट अ क्रॉस ऑन इज फ्लाइंग. सो आवर सेंटेंस विल बी चिल्ड्रन आर फ्लाइंग kites. Remember students, if the sentence was the child, यहाँ पे child होता
चिल्ड्रन की जगह, तो हम लिखते द चाइल्ड इज फ्लाइंग kites, है ना। द चाइल्ड इज फ्लाइंग काइट। तो इज फ्लाइंग कब आता? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता, बट चिल्ड्रन है और यहाँ पे हमारा सेंटेंस चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन प्लूरल है, इसलिए हमने क्या लिखा? चिल्ड्रन आर फ्लाइंग kites. Now look at the difference. अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा बेटा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इज फ्लाइंग लिखेंगे, बट हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम क्या यूज करेंगे? आर, है ना। ये आपको याद रखना है। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर हम इज फ्लाइंग यूज करेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है। द चाइल्ड मीन्स वन चाइल्ड एंड चिल्ड्रन मीन्स मोर देन वन चाइल्ड। तो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इज लेंगे आर। सब्जेक्ट अगर आई है तो हम एम प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म लेंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम इज प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म लेंगे, है ना। अगर सपोज आई होता है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो हम लिखते आई एम फ्लाइंग काइट। फाइन। सो सब्जेक्ट के हिसाब से आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म। इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल तो आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, एंड इफ द सब्जेक्ट इज आई तो एम प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। दिस यू नीड टू कीप इन माइंड। सो 8 sentences. Children are flying kites. I hope everybody has made a circle on are flying. Fine. Now I'm going to erase this, students. And now I'm going to explain present continuous tense with some more examples. Now, before I explain the examples, I hope all of you remember how to form the ing form, है ना। जो भी वर्ब में लास्ट में ई होते हैं उनका हमको ई ड्रॉप करके आईएनजी लगाना होता है, एंड कुछ वर्ब्स में लास्ट में जिनमें कॉन्सोनेंट होता है और उनके पहले वॉवल होता है, वहां पे आईएनजी लगाने से पहले कॉन्सोनेंट को डबल करना है। आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर दिस विच आई टॉट इन माई लास्ट 2 वीडियोज। सो आपको वर्ब का आईएनजी फॉर्म आना जरूरी है। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सम मोर एग्जाम्पल्स विथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। उससे पहले मैं आपको समझा दूं बेटा, इज किसके साथ यूज होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। प्रेजेंट टेंस में इज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है। जो हेल्पिंग वर्ब है ये आपको याद रखना है ना। आर जितने भी प्लूरल्स होंगे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज होगा, ये आपको याद रखना है। इज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, आर प्लूरल के साथ, और एम जो है वो किसके साथ यूज होता है? आई। दिस यू नीड टू कीप इन माइंड। इज हेल्पिंग वर्ब होता है, और जो वर्ब के आईएनजी फॉर्म होता है उसमें अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इज यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर यूज करेंगे, और आई है तो एम यूज करेंगे। दिस यू नीड टू कीप इन माइंड। Fine. Now, some examples before doing exercise 2. I would like to explain with some examples. ठीक है? थोड़े और examples आपको बताती हूँ so that the concept gets clear to you. I am carrying my school bag. She is carrying her school bag.
You are carrying your school bag the boy is carrying his school bag the boys are carrying their school bag we are carrying our school bags. Now, one more sentence. They are carrying their school bags. Now, I have written 7 sentences to explain you the concept of present continuous tense. Now, the first sentence, students, is I am carrying my school bag. As I explained to you, in present continuous tense बेटा I के साथ am और verb का ing form use होता है. So you need to keep this in mind. I am carrying my school bag. Present continuous tense में I के साथ बेटा हमेशा we always use am and verb का ing form. This you need to keep in mind. So I am carrying my school bag. I के साथ हम हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं बेटा am और वर्ब का ing फॉर्म. सो रिमेंबर इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम I के साथ हमेशा am और वर्ब का ing फॉर्म यूज करते. तो सेंटेंसेस I am carrying my school bag. Then the second sentence, she is carrying the school bag. अगर आपका सब्जेक्ट ही हो शी हो तो आप हमेशा इस और वर्ब का ing फॉर्म यूज करेंगे. एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट. अगर आपका सब्जेक्ट ही हो शी हो है ना, सिंगुलर नाउन हो तो आप इस प्लस वर्ब का ing फॉर्म यूज करेंगे. अगर शी की जगह ही भी होता तो हमारा में हम क्या ही लिखते, ही इज कैरिंग हिज स्कूल बैग. बट आपको ये याद रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम इस और वर्ब का ing फॉर्म यूज करेंगे. I have written the same sentences using different subjects, but you need to understand this कि कौन से वर्ड के साथ आपको कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है. Then the third sentence is you. अब आपको याद रखना है प्रोनाउन वी हो, यू हो, दे हो. मैंने तीनों प्रोनाउन से एक एक सेंटेंस बनाया है. इनके साथ हम हमेशा आर प्लस वर्ब का ing फॉर्म यूज करते हैं विथ वी, यू एंड दे. सो द थर्ड सेंटेंस इज यू आर कैरिंग योर स्कूल बैग. फाइन. यू के साथ है ना हमेशा हम आर ही यूज करते हैं. ये हमने इज एम आर जब यूनिट 6 हम पढ़ रहे थे उसमें भी हमने पढ़ा था कि आर किसका फ्रेंड है, यू का फ्रेंड है. कब फ्रेंड होता है, इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना. प्रेजेंट टेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो तो हम यू के साथ क्या यूज करेंगे बेटा, आर. ये आपको याद रखना है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ एम, शी ही के साथ इज,
यू वी दे के साथ आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करना है. सो यू आर कैरिंग योर स्कूल बैग. अब सपोज नाउ द फोर्थ सेंटेंस इज द बॉय इज कैरिंग ए स्कूल बैग. यू हैव टू सपोज कि अब आपका द बॉय ये सब्जेक्ट है. जो भी एक्शन करता है सेंटेंस में वो कौन होता है? सब्जेक्ट होता है. और यहाँ पे द बॉय हु इज कैरिंग द स्कूल बैग, द बॉय, बॉय सब्जेक्ट है तो बॉय सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा. उसके साथ भी हम क्या करेंगे? इज लगाएंगे. इज प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म. तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? द बॉय इज कैरिंग हिज स्कूल बैग. नाउ लुक एट द फिफ्थ सेंटेंस. अब यहाँ पे बेटा बॉय की जगह बॉयज है. द बॉयज सब्जेक्ट प्लूरल हो गया है. तो जब सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो उसमें इसकी जगह क्या हो जाएगा? आर. The boys are carrying their school bags. The boys are carrying their school bags. Everything depends upon the subject. आपको सब्जेक्ट देखना है कि आपका सब्जेक्ट क्या, उस हिसाब से आपका हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का एनजी फॉर्म लगेगा. Now, the sixth sentence. We are carrying our school bags. We हो, सब्जेक्ट अगर आपका you हो, we हो, they हो, तो उनके साथ हम क्या लगाएंगे? कौन सा हेल्पिंग वर्ब? आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म. तो वी आर कैरिंग आवर स्कूल बैग्स. नाउ द सेवेंथ सेंटेंस. दे सब्जेक्ट दे है. दे आर कैरिंग देयर स्कूल बैग्स. सो ये आपको याद रखना है बेटा कि आई के साथ एम प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म, ही शी के साथ इज प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म, यू के साथ आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वह इज प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और अगर आपका सब्जेक्ट वी हो, दे हो, तो आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म. अगर आप ये याद रखोगे तो आप आराम से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ सकते हैं. आई होप this is clear to you. Now some more examples to make the concept clear to you. Now, the eighth sentence is, he is asking for a lift in my car. यहाँ पे आप सब्जेक्ट देखो, आपका सब्जेक्ट क्या है? he. Who is asking for a lift in the car? he. जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट एज एक्सप्लेन ही हो, शी हो, तो आपका हमेशा इज प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा. यू नीड टू कीप दिस इन माइंड. ही के साथ, शी के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा. सो ही इज आस्किंग फॉर अ लिफ्ट इन माय कार. नाउ the next sentence is, students are working on their projects. Over here, the subject is students. Subject students है. तो students अगर आपका subject plural है तो हम क्या यूज करेंगे उसके संग? हेल्पिंग वर्ब आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म. तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? Students are working on their project. Whereas अगर यहाँ पे सेंटेंस होता, the student
एक स्टूडेंट के बारे में हम बात करते तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाता, या प्लूरल था तो आर लिया, यहाँ पे द स्टूडेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट वन स्टूडेंट, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा द स्टूडेंट इज वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट। तब हम इज वर्किंग लेते हैं। तो ये आपको सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चूज करना है ना। Mona is talking on the phone. Now, who is talking on the phone? Mona. Mona subject है and Mona one है, singular subject है, तो यहाँ पे singular subject के साथ क्या लगेगा, is plus verb का ing form. Mona is talking on the phone. Then we are going on a picnic. My next sentence is we are going on a picnic. अब बेटा अगर सब्जेक्ट we है तो हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब आर प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे. सो वी आर गोइंग ऑन अ पिकनिक. सो यू नीड टू कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, अगर आपका सब्जेक्ट आई है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तो आई के साथ हम एम प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे. अगर हमारा सब्जेक्ट ही हो, शी हो, है ना, या कोई सिंगुलर नाउन हो तो हम उनके संग इस प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे. वेयर एज अगर हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल हो, है ना, प्लूरल हो, वी हो, यू हो, दे हो, तो हम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे. किस टेंस में बेटा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. So I hope the present continuous tense is little bit clear to you. और present continuous tense कब यूज करते हैं? To show what is happening now. कोई एक्शन जो अभी हो रहा है और कंटिन्यू हो रहा है उसको हम बताने के लिए कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग, अभी मैं क्या कर रही हूं? आई एम टीचिंग. अभी आप क्या कर रहे हो? यू आर लिसनिंग. आप, मैं जो बोल रही हूं आप मुझे सुन रहे हो, है ना. आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, अभी मैं लिख रही थी. ये कौन सा है? ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा बेटा. वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. Once again, I'm reading this examples to make it more clear. Beta, the 8th example is, he is asking for a lift in my car. If your subject is he, she या कोई भी singular noun है तो उसके साथ हम is plus verb का ing form यूज करते हैं. किसमें? Present continuous tense. 9th sentence is, students are working on their project. अगर आपका जो subject है sentence, subject कौन होता है बेटा? The one who does the action, the one who performs the action in the sentence is the subject. अगर subject plural है, यहाँ पे देखो students पे s लगा है तो हम r plus verb का ing form. Students are working on their project. The 10th sentence is the student. यहाँ पे subject singular, we are talking about one student, तो उसके साथ क्या लगेगा? is plus verb का ing form. The student is working on his project. Fine. Then the 11th one. Mona is talking on the phone. अगर यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे ये भी था सिंगुलर, ये भी है ना, कोई भी अगर सिंगुलर नेम है तो वहां पे हम is talking on the phone. Whereas अगर मोना and सोना दो लोग होता, सब्जेक्ट प्लूरल, मोना एंड सोना, तब हम इसकी जगह क्या करते? आर talking on the phone.
ये आपको ध्यान रखना है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इस प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म। अब यहाँ पे मैंने 13 में क्या लिख दिया, मोना एंड सोना, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, इसकी जगह आर। खाली मोना या खाली सोना होता तो हम इस लिखते। सो दिस यू नीड टू कीप इन माइंड। The 12th sentence, we are going on a picnic. अगर आपका सब्जेक्ट हो we, they, you, तो आप हमेशा आर और वर्ब का ing फॉर्म ही यूज करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो एग्जाम्पल्स मैंने अभी आपको समझाया, those examples are clear to you. You just need to remember the use of am, is and are with the in form of the verb. और अगर ये समझ में आ गया then it is very easy to understand present continuous tense. So students, that's all for today. Please do revise exercise 1. Thank you students. Have a good day ahead.